हाँ जी बच्चे, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट product and box topology. Previously we have discussed about the product topology on the two topological spaces. Now we have defined the product of two topological spaces like x cross y. We have said that we can define a product topology, and now what we are going to do, we are going to generalize this product. We are going to generalize this product. So let us just consider the Cartesian products. Like we can consider the Cartesian products as x1 cross x2 cross x3 cross xn, or we can do it like this: x1 cross x2 cross x3 and so on. So we can generalize the product on topological spaces in these two ways. Now there are two possible ways to proceed, like two possible ways to define the topology on both of them, right? Now first way is to take as basis all bases of all the sets, or we are going to generalize a sub basis formulation. These are the two ways that we are going to define the topology on both of them. Like if we if we take bases of all the sets, if we take bases all sets of the form, if we take as basis all sets of the form, we can take it like u1 cross u2 up till un in this case, right? And if we are considering this case, then we can take the bases as of the form u1 cross u2 cross u3 and so on. And following this procedure, when we will define the topology on these two Cartesian products, this topology we will name it as box topology. We will name it as box topology when we will define bases of all the form of these two types. Then the topology generated will be called as box topology. Now another way to formalize, to generalize is the sub basis formulation, is to generalize the sub basis formulation. Like we can take as a sub basis, we can take as sub basis all sets of the form pi I inverse ui. We can take sub basis all sets of the form pi I inverse ui, where each ui is open in xi, where each ui is open in xi for each I, for each I. ठीक है, जब हम लोग इस टोपोलॉजी को डिफाइन करेंगे, व्हेन वी विल डिफाइन द टोपोलॉजी टेकिंग सब बेसिस ऑल सेट्स ऑफ द फॉर्म, then that topology will be called as the product topology. This is how we are going to proceed. We will do the definition in the detailed form. Like I am just giving you an overview कि हमने अपनी प्रोडक्ट को क्या करना है, दो पार्ट्स में जनरलाइज कर देना है. ठीक है, हमारे पास इसको जनरलाइज करने के भी दो तरीके हैं, फाइनाइट प्रोडक्ट है, इनफाइनाइट प्रोडक्ट है. जब हम उसके ऊपर बेसिस को या सब बेसिस को फॉर्मलाइज करेंगे, उसके हिसाब से हमारे पास टोपोलॉजी बनेगी. वी कैन डिफाइन बॉक्स टोपोलॉजी, वी कैन डिफाइन प्रोडक्ट टोपोलॉजी. ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं. तो हमारी सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले वो कहता है कि तुम एक इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स को क्या करो, डिफाइन करो. हमने ए अल्फा फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू जे एक इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स ले लिया. ठीक है, जितने भी यहाँ पर सेट्स हैं उनके यूनियन को मैंने क्या नाम दिया है, एक्स नाम दिया है. उनके यूनियन को क्या नाम दे दिया, एक्स. अब जब इस इंडेक्स्ड फैमिली के तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करोगे तो वो कैसे डिफाइन होगा, प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फा फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू जे. हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं ना, a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3 क्रॉस a4 एंड सो ऑन. सो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडेक्स्ड फैमिली. जब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करा जाएगा तो इसमें ये सेट कैसे का बनेगा, इस सेट में होंगे सारे के सारे जे टपल्स. मतलब इसमें तुम्हारे पास क्या आएंगे, टप्पल वाले एलिमेंट्स आएंगे. जैसे हम लोग बच्चे बोलते हैं कि मेरे पास a1 क्रॉस a2 आया है, तो इसका जो एलिमेंट होगा दैट विल बी ऑफ द फॉर्म x1 x2 फॉर x1 बिलोंगिंग टू a1 एंड x2 बिलोंगिंग टू a2. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास जब हमने a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3 क्रॉस a4 की बात करनी है, तो जो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, ये क्या आएगा, इट विल बी द सेट ऑफ ऑल जे टपल. जे टपल का क्या मतलब हुआ, इसको मैं बोलती हूँ टू टपल. ओके,
जब मैं इसमें A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 की बात करूंगी तब उसमें आएंगे 3 टपल्स, इट विल बी द सेट ऑफ ऑल द 3 टपल्स। ठीक है, जब हम लोग इसमें तो हमारे पास आएंगे x1 x2 x3 एंड सो ऑन। सो दिस इज x अल्फा बिलोंगिंग टू A अल्फा फॉर ईच अल्फा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सेट आएगा सारे के सारे J टपल्स का। इसको हम टपल की फॉर्म में लिख देते हैं, जनरल फॉर्म है। इसका मतलब यही है कि इट इज अ टपल हैविंग एलिमेंट्स x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन। ठीक है, of the elements of x such that x alpha belongs to A alpha for each alpha belonging to J. That is, it is the set of all the functions x from J to union such that x alpha belongs to A alpha। मतलब ये जो हम बोल रहे हैं ना कि x alpha जो है वो A alpha को बिलोंग कर रहा है, ये कैसे हुआ कि हमने क्या करा, हमने इस इंडेक्स्ड फैमिली को इस यूनियन तक जब मैप करा तो इसका हर एलिमेंट एक इंडेक्स लेकर अल्फा पे पहुंच गया। देयर इज अ फैमिली, वी से वी हैव 1 2 3, ये एक इंडेक्स्ड फैमिली है। तो जब हमने इसके ऊपर x वाला फंक्शन लगाया तो x1 is proceeding towards A1, x2 is proceeding towards A2, x alpha is proceeding towards A alpha. So this is the set of all the functions x from J to union of A alpha such that x alpha belongs to A alpha. You can denote it like this, x alpha, or you can denote it like this. This is in your hands. This is the basic definition for indexed family of sets. Okay, now our main definition, box topology. What is a box topology? हमारे पास हम लोग अब डेफिनेशन पढ़ेंगे बॉक्स टोपोलॉजी। बॉक्स टोपोलॉजी मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक x अल्फा an indexed family of topological spaces. Then we have to take as basis for a topology defined on the product space. हमने क्या करना था, हमने अपनी प्रोडक्ट स्पेस के लिए टोपोलॉजी को डिफाइन करना था। तो मैंने जो ये इंडेक्स्ड फैमिली ली है, मैंने उसका एक प्रोडक्ट स्पेस लिया, प्रोडक्ट ऑफ x अल्फा। उसके लिए मैंने बेसिस के एलिमेंट्स का कलेक्शन लेना था, तो मैंने कलेक्शन लिया कैसे के सेट्स का, प्रोडक्ट ऑफ u अल्फा, वेयर ईच u अल्फा इज ओपन इन x अल्फा। जब तुम अपनी प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर बेसिस के एलिमेंट्स का कलेक्शन करते हो और वो जो टोपोलॉजी जनरेट करता है, वो टोपोलॉजी को हम बोलते हैं बॉक्स टोपोलॉजी। द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ द फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ u अल्फा वेयर u अल्फा इज ओपन इन x अल्फा, the topology generated by this basis will be called as box topology. इसको हम क्या बोलेंगे, box topology. Now the another definition, जब हम कंपेयर करेंगे इसको प्रोडक्ट टोपोलॉजी के साथ, प्रोडक्ट टोपोलॉजी में भी तुमने क्या करना है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी में हमने एक इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसिस को लेकर चलना है। उसके लिए हमने जो टोपोलॉजी डिफाइन करनी है प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर, उसके लिए जो हमने टोपोलॉजी डिफाइन करनी है प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर, हमने वहां पर क्या लेना है, सब बेसिस। उसके लिए हमने क्या लेना है, सब बेसिस। सब बेसिस के लिए जो तुम कलेक्शन करते हो उसमें देखो आई हैव रिटन पाई बीटा इनवर्स यू बीटा। नाउ व्हाट इज पाई बीटा? तो पाई बीटा को अंडरस्टैंड करने के लिए वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी प्रोजेक्शन मैपिंग। What is a projection map? What is a projection map? Let pi beta from product of x alpha to x beta be the function, product of x alpha to x beta be the function that assigns to each element of the product space its beta factor. मतलब हमने एक प्रोजेक्शन मैप करना है, मेरे पास एक प्रोडक्ट ऑफ एक्स अल्फा वाला स्पेस पड़ा है। जो प्रोजेक्शन मैप है वो क्या करता है, वो हर एलिमेंट, प्रोडक्ट स्पेस के हर एलिमेंट को उसका एक बीटा फैक्टर क्या करता है, असाइन कर देता है। ठीक है, हम उसको जैसे अब अगर एक प्रोडक्ट ऑफ एक्स अल्फा है वो x1 पर अगर मैप होगा तो उसको पाई1 मैप बोला जाएगा, अगर वो x2 पे मैप हो जाएगा तो उसको पाई2 मैप बोला जाएगा। मतलब उसको फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर इस तरह से असाइन करता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन मैपिंग। अगर तुम पाई बीटा डिफाइन कर रहे हो तो दिस इज द प्रोजेक्शन मैपिंग विद इंडेक्स बीटा। यही प्रोजेक्शन मैप को हमने अपनी प्रोडक्ट टोपोलॉजी में क्या करना है, यूज करना है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि पाई बीटा फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ एक्स अल्फा टू एक्स बीटा इज द फंक्शन, और इस प्रोजेक्शन मैप को बच्चे हमने कॉन्टिन्यूअस मैप प्रूव करा था। ठीक है, अब अगर तुम्हारे पास एक्स बीटा में कोई यू बीटा फंक्शन ओपन पड़ा, यू बीटा सेट ओपन पड़ा है,
तो उसका इनवर्स इमेज कहाँ पड़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्स अल्फा में, दैट विल बी पाई बीटा इनवर्स यू बीटा। और यही वाले जो सेट्स हैं ये ओपन सेट्स होंगे। दिस कलेक्शन विल बी टर्म्ड एज द सब बेसिस। ये देखो हमने अपना एक इंडेक्स्ड फैमिली लिया टोपोलॉजिकल स्पेस का। इस टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर जब हमने प्रोडक्ट स्पेस को डिफाइन करा तो हमने सब बेसिस को डिफाइन करा। कैसे की कलेक्शन लिया, पाई बीटा इनवर्स यू बीटा, वेर यू बीटा इज ओपन इन एक्स बीटा। तो जो इस कलेक्शन से हमारी टोपोलॉजी जनरेट होती है, इस सब बेसिस के कलेक्शन से टोपोलॉजी जनरेट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट टोपोलॉजी। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट टोपोलॉजी। ये दो डेफिनेशंस हैं बच्चे, इन दोनों का कंपैरिजन है। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ यू अल्फा का कलेक्शन, मतलब हम लोग बेसिस के सेट्स का कलेक्शन ले रहे हैं। जब हम प्रोडक्ट टोपोलॉजी को डिफाइन करते हैं तब हम सब बेसिस की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट सब बेसिस। और जब उनसे जो हमारी टोपोलॉजी जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टोपोलॉजी। ये है हमारी बेसिक डेफिनेशंस प्रोडक्ट टोपोलॉजी एंड बॉक्स टोपोलॉजी के लिए। हाँ जी, तो हमारी अब थ्योरम है बॉक्स और प्रोडक्ट टोपोलॉजी के कंपैरिजन के ऊपर। तो उसमें थ्योरम में हमने क्या पढ़ना है कि अगर कोई फाइनाइट प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है तो उसके लिए आपकी बॉक्स और प्रोडक्ट टोपोलॉजीज सेम है। हम लोग बच्चे कंपैरिजन्स पढ़ रहे हैं ना, बॉक्स और प्रोडक्ट टोपोलॉजी का हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं। तो अब हमने ये देखना है कि क्या हम अगर प्रोडक्ट को डिफाइन करें तो क्या हमारी टोपोलॉजी सेम आएंगी। इट इज़ फॉर एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट और फॉर एन फाइनाइट प्रोडक्ट, हमने दोनों डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनाइट प्रोडक्ट के लिए कि फॉर द फाइनाइट प्रोडक्ट द बॉक्स एंड प्रोडक्ट टोपोलॉजीज आर प्रिसाइजली द सेम। तो हम क्या करते हैं, हमने दो के लिए तो करा ही हुआ है ना, एक्स क्रॉस वाई के लिए। लेट अस प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू 3। ठीक है, अगर मैं n इक्वल टू 3 के लिए प्रूव कर दूंगी तो दैट मीन्स मेरा आर्बिट्ररी n के लिए मेरा रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। तो इट इज इनफ टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू 3। ठीक है, मतलब हमने क्या करना है, देयरफॉर हम लेट करते हैं बच्चे x को, प्रोडक्ट जो है हमारा वो 3 स्पेसेस का प्रोडक्ट है। लेट x इक्वल टू x1 क्रॉस x2 क्रॉस x3। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जो बॉक्स और प्रोडक्ट टोपोलॉजीज हैं जब हम उनके बेसिस एलिमेंट को डिफाइन करेंगे तो क्या वो हमारे सेम आते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने x1 x2 x3 का ओपन सेट कंसिडर करते हैं। उसके बाद जब तुमने प्रोडक्ट टोपोलॉजी को डिफाइन करना है तो हमने पढ़ा था हमें प्रोजेक्शन मैप्स पढ़ने होते हैं। प्रोजेक्शन मैप्स पढ़ के हम लोग ओपन सेट्स उसमें डिफाइन करेंगे। देन वी विल रिलेट द ओपन सेट्स ऑफ प्रोडक्ट टोपोलॉजी एंड बॉक्स टोपोलॉजी। तो सबसे पहले तो देयरफॉर लेट x इक्वल टू x1 x2 x3 एंड लेट a1 a2 a3 बी ओपन सेट्स इन x1 x2 x3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम प्रोजेक्शन मैप्स की बात करते हैं। तो लेट π1 π2 π3 बी प्रोजेक्शन मैपिंग्स डिफाइंड ऑन x onto its first, second and third factor respectively. First, second and third factor respectively. कैसे कि π1 is a map from x1 cross x2 cross x3 to x1. π2 is a map from x1 cross x2 cross x3 to x2. π3 is a map from x1 cross x2 क्रॉस x3 टू x3। ठीक है, हमने ये डिफाइन कर दिए। अब उसके बाद बच्चे जब हम इसके बेसिस एलिमेंट को प्रोडक्ट टोपोलॉजी में डिफाइन करते हैं हम लोग क्या लेते हैं, इनवर्स इमेजेस। नाउ π1 x1, ठीक है, π1 का इनवर्स इमेज। अब देखो हमने बोला था कि x1 में ओपन सेट हमने लेट करा था a1, x2 में लेट करा था a2, x3 में लेट करा था a3। तो a1 अगर x1 में ओपन है तो उसका इनवर्स इमेज π1 इनवर्स ऑफ a1
विल बी इक्वल टू A1 क्रॉस X2 क्रॉस X3। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं देन पाई1 इनवर्स A1 की वैल्यू क्या बनेगी बच्चे, A1 क्रॉस X2 क्रॉस X3। ऐसे ही पाई2 इनवर्स A2 की वैल्यू क्या बनेगी, X1 क्रॉस A2 क्रॉस X3। और पाई3 इनवर्स A3 की वैल्यू बनेगी बच्चे X1 क्रॉस X2 क्रॉस A3। ठीक है, वेयर A1 कॉमा A2 कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 आर ओपन इन X1 X2 X3 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमने इनवर्स इमेजेस को डिफाइन कर दिया। जब हमारी इनवर्स इमेजेस डिफाइन हो गई हैं तो दे टेंड टू बिकम द सब बेसिस एलिमेंट फॉर द प्रोडक्ट टोपोलॉजी। ठीक है, देयरफॉर पाई1 इनवर्स A1, पाई2 इनवर्स A2, पाई3 इनवर्स A3, they are sub-basis elements by definition of product topology। इसके प्रोडक्ट टोपोलॉजी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट्स क्या बनेंगे बच्चे, सब बेसिस एलिमेंट। अब हमने क्या करना है, जब हम इसका फाइनाइट इंटरसेक्शन कर लेंगे तो वो मेरे किसके बेसिस बन जाएंगे, X1 क्रॉस X2 क्रॉस X3 के। नाउ फाइनाइट इंटरसेक्शन of its sub-basis elements is a basis element for, हमने X1 क्रॉस X2 क्रॉस X3 का ही बेसिस एलिमेंट ढूंढना था। ठीक है, वो हमें कैसे मिल जाएगा, सब बेसिस एलिमेंट के फाइनाइट इंटरसेक्शन से। ठीक है, दैट इज पाई1 इनवर्स A1 इंटरसेक्शन पाई2 इनवर्स A2 इंटरसेक्शन पाई3 इनवर्स A3। सो दिस विल बी इक्वल टू A1 क्रॉस X2 क्रॉस X3 इंटरसेक्शन X1 क्रॉस A2 क्रॉस X3 इंटरसेक्शन X1 क्रॉस X2 क्रॉस A3। ये हमारे इंटरसेक्शन आ गए बच्चे। अब हमने उसके बाद जब हमने इनका इंटरसेक्शन चेकआउट करना है तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3। तो दिस विल बी द इंटरसेक्शन एलिमेंट फॉर X1 क्रॉस X2 क्रॉस A3। तो हमारे पास जो सब बेसिस एलिमेंट का इंटरसेक्शन एलिमेंट है वो आ रहा है A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3। और ये एलिमेंट क्या बनेगा, बेसिस एलिमेंट बनेगा किसका, X1 क्रॉस X2 क्रॉस X3 का। और ये हमारे पास जब हमने प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए डिफाइन करना, सॉरी बॉक्स टोपोलॉजी के लिए डिफाइन करना है तो दैट एलिमेंट विल बी सेम फॉर द प्रोडक्ट टोपोलॉजी। ठीक है, तो वहां से हमारे पास सेम प्रूव हो जाएगा। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर B इज इक्वल टू A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 where A1 A2 A3 are open in X1 X2 X3 respectively is basis for product topology defined on product space X1 cross X2 cross X3, which is same as basis for box topology defined on X1 cross X2 cross X3। तो जो हमने सब बेसिस एलिमेंट का इंटरसेक्शन लिया तो जो उसने बेसिस एलिमेंट बनाया प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए वो सेम प्रोडक्ट टोपोलॉजी का जो एलिमेंट है वही बॉक्स टोपोलॉजी के बेसिस एलिमेंट के लिए डिफाइन करते हैं। इसीलिए द बोथ टोपोलॉजीज फॉर फाइनाइट प्रोडक्ट आर प्रिसाइजली द सेम। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि क्या हमारा इनफाइनाइट प्रोडक्ट के लिए भी ये रिजल्ट ट्रू होता है या नहीं होता।
फॉर इनफाइनाइट प्रोडक्ट द टू टोपोलॉजीज आर नॉट सेम। हमने वो चेक करना है। वो कैसे चेक करेंगे? अब हम एक इनफाइनाइट प्रोडक्ट लेंगे। इनफाइनाइट प्रोडक्ट के लिए वी टेक एन आर्बिट्ररी फैमिली और उनके बेसिस एलिमेंट को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो लेट x इक्वल टू प्रोडक्ट x अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा, एंड लेट basis element for box topology defined on product x alpha, alpha belonging to lambda b, b1 equal to product of u alpha, alpha belonging to lambda, where u alpha is open in x alpha। ये हमने बॉक्स टोपोलॉजी के लिए बेसिस एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट स्पेस क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। अब हम प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए अपने डिफाइन करेंगे। नाउ लेट बेसिस एलिमेंट फॉर प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन प्रोडक्ट स्पेस be defined as b2 is equal to product of u alpha, alpha belonging to lambda, where u alpha is equal to x alpha for alpha equal to alpha 1, alpha 2 up till alpha n, and u alpha is equal to u alpha only when alpha is यहाँ पर नॉट इक्वल टू, when alpha is equal to alpha 1, alpha 2 up till alpha n। जब हमारे पास अल्फाज जो हैं वो अगर तो जैसे alpha 1, alpha 2, alpha n है, तब तो वो हमारे u अल्फाज हैं। फिर हमने प्रूव करा ना कि फाइनाइट प्रोडक्ट के लिए तो हमारे पास जो बॉक्स टोपोलॉजी है और प्रोडक्ट टोपोलॉजी है वो सेम है। तो अगर मैं आर्बिट्ररी फैमिली ले रही हूँ तो उसमें बच्चे हमारे पास अगर n एलिमेंट्स की बात करो तो उसमें तो हमारे जो यू अल्फाज हैं वो वही यू अल्फाज हैं जो हमने बॉक्स टोपोलॉजी के लिए डिफाइन करे। उसके बाद वाले जो हमारे हैं या जो उनके अलावा हैं उसके लिए हमारे यू अल्फा डिफरेंट होंगे। तो क्लियरली यहाँ से पता लग रहा है कि जो B1 हमने डिफाइन करा था वो B2 के अंदर कंटेन्ड है। तो अगर हमारे पास B1 इज कंटेन्ड इन B2 तो जो B2 बेसिस से टोपोलॉजी जनरेट होगी वो हमारी B1 वाली टोपोलॉजी के अंदर कंटेन्ड होगी। देयरफॉर टोपोलॉजी generated by basis B2 is contained in topology generated by basis B1। बच्चे ये हमने पीछे डिस्कस करे हुए हैं लेमास, ठीक है। तो हमारे पास अब B2 से जनरेट कौन सी हो रही है? प्रोडक्ट टोपोलॉजी। B1 से कौन हो रही है? बॉक्स टोपोलॉजी। तो दैट मीन्स प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन product topology on product space x alpha, alpha belonging to lambda is contained in box topology defined on product space product x alpha, alpha belonging to lambda। तो इसका मतलब हमारी इनफाइनाइट प्रोडक्ट के लिए हमारा बॉक्स टोपोलॉजी इज फाइनर देन प्रोडक्ट टोपोलॉजी रेदर देन बीइंग सेम, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज बॉक्स टोपोलॉजी is finer than product topology for infinite product। Box topology is finer than the product topology for the infinite product, ठीक है। तो दैट मीन्स अच्छा, इससे एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है वो हमारी स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है और यही टोपोलॉजी हमारे प्रोजेक्शन मैप्स को क्या करती है? कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये हमारा बच्चे बॉक्स टोपोलॉजी और प्रोडक्ट टोपोलॉजी का कंपैरिजन हो गया। तो आपने क्या करना है? आपने इन दोनों के, जब हमने एक तरह से एक्स अल्फाज आर्बिट्ररी टोपोलॉजिकल स्पेसेस की बात करी और उसके ऊपर प्रोडक्ट डिफाइन करने की बात करी, तो हमने क्या पढ़ा था कि उसके ऊपर दो तरह से प्रोडक्ट तुम डिफाइन कर सकते हो। एक उसके बेसिस एलिमेंट को कंसिडर करके, एक उसके सब बेसिस एलिमेंट को कंसिडर करके।
जब तुम उसके बेसिस एलिमेंट को कंसिडर करते हो देन द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय द बेसिस विल बी बॉक्स टोपोलॉजी, और जब तुम सब बेसिस की बात करने लगते हो तो टोपोलॉजी जनरेटेड बाय दैट बेसिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट टोपोलॉजी। और हमारे पास इस एक थ्योरम से या इस एक रिजल्ट से ये भी रिजल्ट क्लियर हो रहा है कि जो बॉक्स टोपोलॉजी है दैट इज फाइनर देन द प्रोडक्ट टोपोलॉजी, एंड प्रोडक्ट टोपोलॉजी इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी। Product topology is the smallest topology that makes projection maps continuous. That makes projection maps continuous. ठीक है, ये हमारे छोटा छोटा रिजल्ट हो गया बॉक्स और प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट बच्चे हमारे पास थ्योरम क्या आ जाती है। नाउ वी आर सेइंग we have an indexed family of spaces, let x alpha, alpha belonging to lambda, be an indexed family of spaces, let a alpha be the subset of x alpha for each alpha, let product of x alpha be given in either of the topologies, let it be box topology or product topology। तो आपको रिजल्ट क्या प्रूव करना है कि जो a अल्फाज की तुम बात कर रहे हो उनका क्लोजर का प्रोडक्ट विल बी कंटेन्ड इन प्रोडक्ट ऑफ a अल्फा का होल क्लोजर। ठीक है, अच्छा नॉट कंटेन्ड, यू हैव टू प्रूव इट टू बी इक्वल ओनली, सॉरी दे बोथ आर इक्वल, कि तुम ए अल्फा का क्लोजर लेके प्रोडक्ट कर लो या तुम ए अल्फा के प्रोडक्ट के बाद क्लोजर कर लो, दोनों ही एक तरह से सेम गिने जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब दो चीज़ों को इक्वल करना होगा तो हम एक दूसरे में कंटेन करा देंगे, राइट। तो कंटेन कराने के लिए बच्चे जैसे अब इसका एलिमेंट ले लो और इसमें कंटेन करा दो, पहले हम यही वाला स्टेप कर लेते हैं। चलो तो लेट अस से सम x इक्वल टू x अल्फा, ये x इक्वल टू x अल्फा का मतलब जो x एलिमेंट तुमने लिया है दैट इज बेसिकली अ टपल, राइट। तो दिस एलिमेंट इज बिलोंगिंग टू प्रोडक्ट ऑफ a अल्फा का क्लोजर, मतलब जो x अल्फा है, जैसे मैंने अगर टपल बनाया x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन, तो x1 इज बिलोंगिंग टू a1 क्लोजर, x2 इज बिलोंगिंग टू a2 क्लोजर, x3 इज बिलोंगिंग टू a3 क्लोजर एंड सो ऑन। हमने क्या प्रूव करना है कि x will belong to product of a alpha का whole closure, मतलब x is the closure point of this product। तो अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को क्लोजर पॉइंट प्रूव करना होता है बच्चे, तो मैं उस एलिमेंट का कोई नेबरहुड लेती हूँ, उसका इंटरसेक्शन a के साथ मुझे नॉन एम्प्टी प्रूव करना होगा। तो अब मुझे x का कोई नेबरहुड डिफाइन करना है, सपोज करो u है, उसका इंटरसेक्शन इस प्रोडक्ट के साथ नॉन एम्प्टी प्रूव करना है, मतलब मुझे इस इंटरसेक्शन में क्या करना है, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करा के दिखाना। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओपन सेट की बात करते हैं। वो ओपन सेट का मतलब टोपोलॉजीज बात करो तो बेसिस एलिमेंट है ना। तो अच्छा अब ओपन सेट लेना किसका है, एक तरह से प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फा वाले का, तो प्रोडक्ट स्पेसिस में जा रहे हैं, तो लेट यू इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ यू अल्फा be the basis element in either topology containing x, जो x को कंटेन करे ऑब्वियसली। तो मैंने एक u को क्या कर लिया, बेसिस एलिमेंट कंसिडर कर लिया। ठीक है, नाउ दिस विल इम्प्लाई दैट u अल्फा इज ओपन इन x अल्फा एंड कंटेन्स x। ठीक है, u अल्फा इज ओपन इन x अल्फा एंड कंटेन्स x। ठीक है बच्चे, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आते हैं। हमने क्या शुरू में लिया हुआ था कि जो हमारा u है, ये हमने जो u लिया हुआ था इसमें हमने बोला है कि जो x है वो हमारा बिलोंग कर रहा है, हमने इस x u को बेसिस एलिमेंट कंसिडर करा हुआ था। अब उस u में हमारे पास क्या पड़ा है, x पड़ा है। अगर x u में पड़ा है तो मतलब प्रोडक्ट में पड़ा है, अगर x प्रोडक्ट में पड़ा है तो मतलब वो एक टपल की फॉर्म में होगा। अगर वो एक टपल की फॉर्म में है तो x अल्फा टाइप का एलिमेंट u अल्फा में जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस x बिलोंग्स टू u, therefore x belongs to product of u alpha, ठीक है, which implies x alpha belongs to product of u alpha, right। Now this step will imply that x alpha is belonging to
u alpha, and for each alpha where u alpha is open in x alpha, where u alpha is open in x alpha। ठीक है, तो x alpha हमारा यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, u alpha को बिलोंग कर गया। ये तो हो गया हमारा रिजल्ट यहाँ से, जो हमने ये u alpha u को कंसिडर करा। अब हमारे पास जो गिवन हमने लिया हुआ था कि x किसको बिलोंग कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ a अल्फा क्लोजर को। इसका भी बच्चे वही बात कि अगर x प्रोडक्ट a अल्फा को बिलोंग कर रहा है तो x अल्फा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, तो x अल्फा a अल्फा क्लोजर्स को बिलोंग करेगा, राइट। ऑल्सो x अल्फा बिलोंग्स टू a अल्फा क्लोजर, x अल्फा बिलोंग्स टू a अल्फा क्लोजर। तो जो x अल्फा का नेबरहुड होगा वो a अल्फा के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देगा। दिस इम्प्लाइज u अल्फा इंटरसेक्शन a अल्फा इज नॉट इक्वल टू 5। ध्यान से सुनो, हमने क्या बोला था कि हमारे पास एक u नेबरहुड है, बेसिस एलिमेंट है जो x को कंटेन कर रहा है। अगर x u में पड़ा है तो x अल्फा टाइप का जो एलिमेंट है वो u अल्फा में जाएगा, और u अल्फा हमारा x अल्फा में क्या है, ओपन है। ठीक है, एंड इसका मतलब कि u अल्फा जो है वो x अल्फा का नेबरहुड बन गया। ऑल्सो x अल्फा वॉज अ क्लोजर पॉइंट ऑफ a अल्फा, तो दैट मीन्स दोनों के पास नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन है ही है। और अगर दोनों नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन ले रहे हैं मतलब उनके पास कोई ना कोई एलिमेंट है। दिस इम्प्लाइज, या फिर ऐसे लिख लो, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट सम y बिलोंगिंग टू u अल्फा इंटरसेक्शन a अल्फा। ठीक है, फॉर ईच अल्फा। अब वही बात कि कोई y अल्फा ले लो, चलो कि अगर y अल्फा u अल्फा इंटरसेक्शन a अल्फा में है तो दोनों में है। ठीक है, अगर दोनों में है तो मतलब y1 u1 में है, y2 u2 में है, तो मतलब पूरा का पूरा y प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज y अल्फा बिलोंग्स टू u अल्फा एंड y अल्फा बिलोंग्स टू a अल्फा फॉर ईच अल्फा। अगर हमारे पास u अल्फा a अल्फाज में है तो दैट मीन्स आप उसको एक टपल की फॉर्म में लिख सकते हो, और वो जो टपल है बच्चे वो आपके प्रोडक्ट को बिलोंग करेगा, है ना। सिमिलरली है एंड y इज इक्वल टू y अल्फा बिलोंग्स टू प्रोडक्ट ऑफ a अल्फा फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा। तो अगर y हमारा प्रोडक्ट ऑफ u अल्फा में है मतलब u में है, और यहाँ पर y किस में है, प्रोडक्ट ऑफ u अल्फा में, a अल्फा में, सॉरी, दैट मीन्स u इंटरसेक्शन प्रोडक्ट ऑफ a अल्फा इज नॉट इक्वल टू 5। u इंटरसेक्शन प्रोडक्ट ऑफ a अल्फा इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, वेयर u क्या था, u इज नेबरहुड ऑफ x। तो मैंने x का एक ऐसा नेबरहुड ढूंढ लिया जो तुम्हारे प्रोडक्ट ऑफ a अल्फा के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन दे रहा था। इसका मतलब x इज बिलोंगिंग टू प्रोडक्ट ऑफ a अल्फा का होल क्लोजर फॉर x बिलोंगिंग टू प्रोडक्ट ऑफ क्लोजर ऑफ a अल्फा। दैट मीन्स a अल्फा क्लोजर का प्रोडक्ट इज कंटेन्ड इन प्रोडक्ट ऑफ a अल्फा का होल क्लोजर। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर बच्चे। ठीक है, ये बहुत सिंपल रहा है। हमने क्या करा है, हमने नेबरहुड कंसिडर करके बेसिस एलिमेंट की डेफिनेशन लगाकर ही उसको आगे ओपन करा है। ठीक है, जो जो चीज़ें आप करते जा रहे हो उनको आपने साथ में पकड़ के ही चलना है, आपने कहीं पर भी उसको छोड़ना नहीं है। जो जो चीज़ें हमने आगे डिफाइन कर दी हैं। ठीक है, ओके, नाउ फॉर द अदर पार्ट। नाउ फॉर द अदर पार्ट हमने अब क्या प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ a अल्फा का होल क्लोजर इज कंटेन इन प्रोडक्ट ऑफ a अल्फा क्लोजर, राइट। हमने होल क्लोजर का एलिमेंट लेके चलना है, उसको a अल्फा क्लोजर में दिखाना है। अब आप इसको दोबारा से, नाउ लेट x इज इक्वल टू, वही चीज़ बच्चे, x अल्फा बिलोंग्स टू प्रोडक्ट ऑफ a अल्फा का होल क्लोजर। ठीक है, टू प्रूव फॉर any given beta, for any given beta x beta belongs to a beta का क्लोजर। क्यों, क्योंकि हमने अल्टीमेटली प्रूव ये करना है कि जो x है वो किसको बिलोंग करेगा, प्रोडक्ट ऑफ a अल्फा के क्लोजर को। मतलब ईच x अल्फा मस्ट बिलोंग टू a अल्फा का क्लोजर। ठीक है, तो कोई ना कोई इंडेक्स के लिए तुम्हारे पास जो x अल्फा या x बीटा है वो a अल्फा क्लोजर को बिलोंग करना चाहिए। मतलब वही बात
एक्स बीटा ले रहे हैं हम किसी भी गिवन इंडेक्स के लिए कि हमने एक्स बीटा का एक नेबरहुड लेना है और उसका ए बीटा के साथ इंटरसेक्शन प्रोवाइड करना है। तो लेट अस से कि लेट वी बीटा बी एनी आर्बिट्रेरी, लेट वी बीटा बी एनी आर्बिट्रेरी ओपन सेट of x beta containing small x beta, राइट। अब उसके बाद क्या है, हमने अगर कोई बीटा लिया है और हमने अपने एलिमेंट को डिफाइन करना है तो हम प्रोजेक्शन मैप की बात कर सकते हैं। हमने बीटा फैक्टर, हमने अब एक पूरे प्रोडक्ट में से एक फैक्टर उठाना है, तो जब एक फैक्टर की बात करनी हो हम हमेशा प्रोजेक्शन मैप को बीच में डिफाइन करते हैं। तो लेट अस डिफाइन बीटा फैक्टर का प्रोजेक्शन मैप, प्रोडक्ट ऑफ एक्स अल्फा से एक्स बीटा तक। लेट डिफाइन पाई बीटा फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ एक्स अल्फा टू एक्स बीटा बी प्रोजेक्शन ऑन बीटा फैक्टर। हमने बीटा फैक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन मैप डिफाइन कर दिया। एंड प्रोजेक्शन मैप इज अ कंटिन्यूअस मैप, हमें टोपोलॉजीज डिफाइन करके दी हुई है ना, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। एंड पाई बीटा इज अ कंटिन्यूअस मैप, ठीक है। तो हमारे पास एक्स बीटा में एक ओपन मैप सेट पड़ा था और पाई बीटा कंटिन्यूअस है, तो उसका इनवर्स इमेज प्रोडक्ट में कंटिन्यू ओपन जरूर होगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज पाई बीटा इनवर्स बी बीटा इज ओपन इन प्रोडक्ट ऑफ एक्स अल्फा, इज ओपन इन प्रोडक्ट ऑफ एक्स अल्फा, ठीक है। मतलब कि पाई बीटा इनवर्स वी बीटा इज नेबरहुड ऑफ एक्स, इज नेबरहुड ऑफ एक्स, ठीक है। हमारे पास जो भी हमारे पास पाई बीटा के अंडर ओपन मैप आया उसके लिए हमने एक्स का एक नेबरहुड ढूंढ लिया, वो क्या है पाई बीटा इनवर्स एक्स वी बीटा, और एक्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फा के होल क्लोजर को बिलोंग कर रहा है ना। एंड एक्स बिलोंग्स टू प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फा का होल क्लोजर, तो जो इसका नेबरहुड है वो इस प्रोडक्ट के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन पक्का देगा। पाई बीटा इनवर्स वी बीटा इंटरसेक्शन प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फा विल बी नॉट इक्वल टू 5। अब अगर यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम y बिलोंगिंग टू दिस इंटरसेक्शन। सेम वही स्टेप्स हैं बच्चे, बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सी चीज़ पहले लिखनी है कौन सी चीज़ बाद में। तो y बिलोंग्स टू पाई बीटा इनवर्स v बीटा। अब ये ध्यान रखना दिस इज पाई एंड दिस इज प्रोडक्ट, तो छोटा बड़ा अपने आप अच्छे से लिख लेना। एंड y बिलोंग्स टू द प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फा। पाई बीटा इनवर्स v बीटा को हम लोग अगर v बोल दें, ठीक है, दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू v, ठीक है। इसको इक्वल टू v लिख देते हैं से यहीं पे छोटा करने के लिए। एंड y बिलोंग्स टू प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फा, ठीक है जी। तो अगर y हमारा v को बिलोंग कर रहा है और y प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फा को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जो इसका अल्फाथ कंपोनेंट है दैट विल बिलोंग टू v अल्फा इंटरसेक्शन ए अल्फा, ठीक है। मतलब हमारा v अल्फा इंटरसेक्शन ए अल्फा इज नॉट इक्वल टू 5। दैट मीन्स हमारे पास एक नेबरहुड आ रहा है जो ए अल्फा के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देगा। दैट इज फॉर एनी गिवन इंडेक्स बीटा v beta intersection a beta is not equal to 5, which will imply that x beta belongs to a beta का closure, ठीक है। for each beta x beta will belongs to a beta का closure। that means जो हमारे x हैं वो product of a alpha के closure को belong करेंगे for x belonging to the whole product का closure। मतलब these two things are also contained in each other, ठीक है। तो from 1 and 2 both are equal। from 1 and 2 product of a alpha का whole closure is equal to a alpha closure का product, hence proved। ये हमारा पहला रिजल्ट हो गया बच्चे, ये हमने अपना डिफाइन कर दिया, ठीक है। कि हमारे पास जो ए अल्फा है उनके प्रोडक्ट्स को अगर तुम डिफाइन करो तो उनके क्लोजर्स का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है।
तो ये बच्चे हमारी एक थ्योरम थी रिलेटिंग टू प्रोडक्ट टोपोलॉजी एंड बॉक्स टोपोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी थोड़ी सी थ्योरम तो और डिस्कस करेंगे एंड विल कंक्लूड द टॉपिक। टिल देन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप पढ़िए और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।